હરિશ્ચંદ્ર આ વંશની અંદર ભગીરથ નામનો રાજા, સગર નામનો રાજા, સગરનો પુત્ર અંશુમાન, અંશુમાનનો પુત્ર દિલીપ. પણ સગર ચરિત્રની કથા મૂકી, બાકી બધી કથા સંક્ષેપમાં મૂકી દીધી, પણ સગરની વિશિષ્ટ મૂકી. સગરને બે પત્ની છે. એક પત્નીએ ઋષિની સેવા કરીને આશીર્વાદ માંગ્યો, મને 100 દીકરા થયો, આશીર્વાદ આપો. બોલો આજે આવો કોઈ આશીર્વાદ આપે તો? અરે બાપા શું મસ્કરી કરો તમે, શ્રાપ આલો કે આશીર્વાદ આપો છે, એમ જ કહીએ ને આપણે. તો અત્યારનો આશીર્વાદ કયો? એક પુત્ર વસુંધરા. એટલે હજારો વર્ષ પહેલા ભૂતકાળ અને ભવિષ્ય બંનેને ધ્યાનમાં રાખીને કથા છે. એક પત્ની કીધું મને એક પુત્ર થયો, આશીર્વાદ આપો, અને એક પત્ની કીધું મને 100 દીકરા થયો, આશીર્વાદ આપો. એ જમાનો હતો કે જમીનો ખૂબ હતી, ઘરના જ માણસો કામ કરે એટલે બધું જ ઘરમાં રહે, સંગ થાય, સંપ થાય. આજે બધું વિભક્ત થઈ ગયું. 100 પુત્ર છે, પણ કેવા છે? પૃથ્વીને ભાર રૂપ છે, દુઃખ રૂપ છે, સત્તા બળ છે, સંગ બળ છે, પણ શું નથી? વિવેક નથી. અને વિવેક વગરનું જીવન કેવું છે? મૃત્યુ સમાન દુઃખ રૂપ છે. 101 પુત્રનો પિતા રાજા સગર બન્યો. સગરને રાજાએ યજ્ઞ કર્યો, યજ્ઞમાં ઘોડો છૂટો મૂક્યો, અને કપિલ મુનિના આશ્રમમાંથી આ ઘોડો મળ્યો. એટલે 100 દીકરાએ ગુસ્સો થયો કે ઋષિ આંખો બંધ કરી બેઠા, અમારો ઘોડો ચોરી લાયા, અપશબ્દ બોલ્યા. પરિણામે સગરે કપિલ મુનિએ આંખ ખોલતાની સાથે સગરના 100 બાળકો બળીને ભસ્મ થઈ ગયા. એક પુત્ર બાકી છે, અંશુમાન. સોતો સોતો કપિલ મુનિના આશ્રમમાં આવ્યો, ઘોડો જોયો, વિનંતી કરી, પ્રાર્થના કરી, ઘોડો લીધો, રાખનો ઢગલો જોયો, અને પૂછ્યું મહારાજ આ શેનો ઢગલો? કોઈ 100 બાળકો આવ્યા હતા, મારા ક્રોધમાં બળીને ભસ્મ થયા. અહીં એક પ્રશ્ન થાય, યોગી પુરુષને ક્રોધ આવે ખરો? જ્ઞાની પુરુષને ક્રોધ આવે ખરો? ભગવદીયને ક્રોધ આવે ખરો? પણ જે ક્ષણે જ્ઞાનનો ઉદય થઈ જાય તો અજ્ઞાન નાશ પામી જાય છે. તમને ઠોકર વાગી, ચાલતા ચાલતા તમારી મોજમાં ચાલો છો, મસ્તીમાં, વિચારોમાં, અને ઠોકર વાગી. એક ક્ષણે તમને ઠોકર ન ગમી, પણ ગાડીનો ચરર અવાજ આવ્યો, કેવું ભાન થઈ ગયું, સારું થયું ઠોકર વાગી, નહીં તો હમણાં નીચે આવી જાય. જ્ઞાનાગ્નિ સર્વકર્માણિ. જ્યાં જ્ઞાનનો ઉદય થાય છે તો અજ્ઞાન આપોઆપ નાશ પામી જાય છે. ભગવાન કપિલે કીધું સ્વર્ગમાંથી ગંગા પૃથ્વી પર આવે તો પિતૃનો ઉદ્ધાર થાય. અહીં પિતાનું અધૂરું કામ પૂરું કરવું એ આપણા બધાની ફરજ છે. ઈશ્વરે તેથી આ સંસાર બનાવ્યો. બ્રહ્માએ મનુને કામ સોંપ્યું, ને મનુ દ્વારા આપણને કામ સોંપતા ગયા છે. તમે ડેવલપ કરો, પણ શું કરો એને આપણે ભૂલી ગયા, એ ખબર નથી આપણને. આપણે પ્રોપર્ટી ડેવલપ કરી, મકાનો કર્યા, બિઝનેસ કર્યા, પરિવાર કર્યો, બધું જ ડેવલપ કર્યું, પણ જે ધર્મને ડેવલપ કરવાનો છે એ કર્મ આપણે બધા ભૂલવા લાગ્યા. પિતાનું અધૂરું કામ એ છે. જે મને સોંપવામાં આવ્યું, આપને સોંપવામાં આવ્યું, આપે આપના દીકરાને સોંપશો. સગરે કીધું બેટા મારાથી તો તપ નહીં થાય, પણ તું મારો દીકરો છું ને, તપ કરજે. સગરે પોતાના દિલીપને બોલાવીને કીધું બેટા હું તપ કરવા જાઉં છું, ગંગા પ્રસન્ન થાય તો તું તપ કરજે ને ગંગાને પ્રસન્ન કરજે. રઘુવંશમાં દિલીપની કથા છે. દિલીપને कैसी गौ सेवा की. अत प्रजानाम अधिप प्रभाते जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्य वनाय पीत प्रतिबद्ध वत्साम यशो धनो धेनु वनाय मुमोच. मेरी सेवा और दिलीप की सेवा में बहुत डिफरेंस है. हम तो रोटी खिलाते और लकड़ी भी मार देते हैं, लेकिन दिलीप तो कैसी सेवा करता है. गौ चलती हो तो उसके पीछे चलने का, गौ बैठे तब बैठना, गौ खाती है बाद में खाने का, गौ अपने आप घर पे आती है,
उसके लकड़ी मारकर रस्सी बांधकर खींचकर नहीं डाला, अपने आप आती है तब पीछे पीछे आना। जाते वक्त इनकी पूजा होती है, आते वक्त उनकी पूजा होती है। जो गोधन और गोरज ऐसी सेवा करते करते दिलीप की परीक्षा कपिला की बच्ची ने ली। उस समय विकट परिस्थिति दिलीप के जीवन में आई, क्योंकि दिलीप ने सोचा मुझे कोई बेटा नहीं है और पिता की आज्ञा है कि गंगा को लाना है। मैं तो प्रयत्न करूंगा, लेकिन मेरे से भी प्रसन्न नहीं हुई तो मुझे पितृदोष लगेगा। और इसलिए गुरुजी के पास जाकर प्रश्न किया, गुरुजी क्या करें मैं? तब गुरु ने उपाय बताया, गौ सेवा का प्राधान्य बताया। उस समय जो गौ सेवा की महत्ता थी, वर्तमान समय में भी इतनी महत्ता है, राम के अवतार में भी इतनी महत्ता है, कृष्ण के समय में भी इतनी महत्ता है, लेकिन हम विलुप्त होते जाते हैं, हम उसके विमुख होते जाते हैं। दिलीप ने गौ सेवा की। हिमालय की गिरिमाला में गौवाओं को चरा रहे और प्राकृतिक दृश्य देखते देखते कपिला की बछड़ी ने सिंह का रूप धारण किया और गाय को पकड़ लिया। गाय चिल्लाने लगे। दिलीप ने सोचा मेरी गाय क्यों बोल रही है, क्या हुआ? सिंह को देखा। दिलीप ने सोचा उसी समय में सिंह को मार डालूं, लेकिन दिलीप ने सोचा मैं जाऊं तब तक तो मुंह बंद कर देगा तो मेरी सामने गौ हत्या होगी। किसी भी तरह से मुझे गौ को छुड़ाना है। दिलीप कहता है तुझे भूख लगी तो मुझे खा जा, मेरी गाय को छोड़ दे। सिंह गाय को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। ये भारत का राजा है जो प्रतिनिधित्व और ईश्वर का रूप कहा जाता है। वो दिलीप ने कहा मैं जब तक हूं तब तक मेरी गाय नहीं मरने दूंगा। मेरा हाथ पैर में तेरे मुंह में डालता हूं, तू मुझे खा ले पहला, बाद में इस गाय को खा। आज के राजाओं की बात तो क्या कहे। कितने कितने आचार्यों ने, कितने कितने संतों ने अपना जीवन का बलिदान दिया, लेकिन अभी तक जो होना चाहिए वो नहीं हुआ है। बहुत अच्छा हुआ, लेकिन ये होना चाहिए, कम से कम हमारी गौ की हत्या नहीं होनी चाहिए। हम सब आंख पे पाटा लगा के अंधे होकर बैठ गए, कान में बुमड़ा लगा कर बहरे लोग हो गए, मुंह बोलता है लेकिन फिर भी बोबड़ा बनकर बैठ गए। ये बंदर तीन बंदर की बात है। आज हम सब ऐसे हो गए, नहीं बोलना, नहीं सुनना, नहीं कहना, कुछ नहीं, बस बैठे रहो। तो फिर क्या हो रहा है? लाखों गौवा कसाई खाने जाती है, गुसल खाने में, और एक्सपोर्ट होती है। करोड़ों रुपया का हुडियामण आता है और वही हुडियामण हमारे हाथ में आता है। आज सारे समाज दुखी है। दुनिया में कहीं भी जाओ कोई नहीं कहेगा मैं सुखी हूं, कहीं ना कहीं वो दुखी है, क्योंकि ये माँ का धन है। माँ के बेचा हुआ मांस का धन आते हैं, और वही आज दो माँ जो दुखी है, जन्मदाता माँ और कर्मदाता माँ। कम से कम ये दो माँ का ऋण मुक्त करना हो तो सेवा के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। जहां बन सके, जितनी बन सके। 125 करोड़ वस्ती हिंदुस्तान की बताई जाती है, 125 करोड़ गौवा ही नहीं। उसके बाद यहाँ के एक संत राजेंद्र दास जी महाराज है, वो अच्छी गौवा की सेवा करते हैं। बहुत गौवा है इनके पास, तो हम तो छोटे बच्चे हैं उनके पास। एक आदमी 1 रुपया दे तो रोजाना 125 करोड़ रुपया हो जाए। कोई गाय को कुछ नहीं करना चाहिए। 1 रुपया ही, कोई 10 रुपया दे, कोई 50 रुपया दे, कोई 100, जो जिसकी शक्ति, लेकिन मिनिमम 1 रुपया से भी गौ का पोषण हो सकता है। लेकिन हमको बेध्यान है। पंडित लोग पूजा कराते हैं, हम पूजा करते हैं। पंडित जी क्या संकल्प करता है, कितनी बार पानी गिराता है, हम कुछ देखते नहीं, बस गिरते गिराते जाओ, गिराते जाओ, गिराते जाओ। पंडित जी बोले गौदान करेंगे, कन्यादान करेंगे, ये वस्त्रदान करेंगे, पात्रदान करेंगे। हम पानी डाला, क्या करना है? पानी डालना है ना, और क्या करना। ये बंधन में हम आते हैं।
और इसलिए संकल्प कराने वाले भी सोचना चाहिए कि ये यजमान ये कार्य पूर्ण करेगा नहीं, और करने वाला का भी चाहिए कि हमको ये जिम्मेदारी सौंपी हम पूरा करेंगे कि नहीं तो दोनों दोषित है और दोनों दुखी होता है। फिर यजमान भी दुखी होता है और आचार्य भी दुखी होता है, क्योंकि आचार्य ने कर्म करवाया है तो आचार्य की जिम्मेदारी है, और यजमान ने कर्म किया है तो यजमान की भी जिम्मेदारी है कि ये काम मुझे पूरा करना चाहिए। दिलीप नो पुत्र, दिलीप ने जो आशीर्वाद મળ્યા कि जात ने पुत्र प्राप्त થશે। वर्तमान समयनी પાંજરાપોળો કોને આભારી છે? तो गौरव थी एक समाज कही सके छे ए जैन समाज ने आधारी छे, एने ज आभारी छे। આપણે બધાએ મંદિરો માટે કરોડો રૂપિયા ભેગા કર્યા, વાપર્યા, પણ જીવ દયા માટે આપણે કશું નથી કરતા। આરાધ્ય દેવ આપણો કૃષ્ણ કહીએ છે, ગુણાનુવાદ ગાઈએ છે, કૃષ્ણ કૃષ્ણ કરીએ છે, પણ કૃષ્ણ વિચારે છે કે જો મારું નામ લે લે કરે પણ મેં જે કામ કર્યું એ કરવાની કોઈ પહેલ નથી કરતો। જરૂર છે કૃષ્ણને યાદ કરીએ ને જો કૃષ્ણ, બીજો વિચાર જો કૃષ્ણની પાસે તાકાત ક્યાંથી આવી ગોવર્ધનને ધારણ કરવાની? કૃષ્ણની પાસે ગીતાનું જ્ઞાન આપવાની જ્ઞાન ક્યાંથી આવ્યું એટલું બધું ભયંકર યુદ્ધની વચ્ચે? અને કૃષ્ણની પાસે દ્વારિકા જેવી સોનાની નગરી જેટલું ઐશ્વર્ય વૈભવ ક્યાંથી આવ્યું? તો મારા મત પ્રમાણે એવું લાગે છે આ ગાય છે, कारण कृष्णे केवल सेवा करी छे। वर्तमान समय में काम गायो राखनारा सुखी छे, शक्तिशाળી छे, पण एनी पासे ज्ञान नथी। मालधारी समाज समृद्ध छे, 5-5 किलो चांदी पहेरीने फरतो होय, किलो सोनू पहेरीने फरतो होय ने क्यांय वगड़ामां खाटलो नाखीने आरामथी कसकसाट सूतो होय। कोई चोरनी ताकत नथी के एना दागीना उतारवा जाय। एक लाकड़ी वीजामी दे तो हाड़का तोड़ी नाखे ने, का तो एक अवाज करे तो एनी 100 गायो दौड़ती आवे ने पेला ने सिंगड़े लईने मारी नाखे। हमने काले ज मैं वीडियो एक जोती, एक गाय एवी विफरी थी, एक माणस ने एटला सिंगड़े मारीने उछाळे, लाकड़ीओ लई लईने मारे तो ए गाय पाछी जईने दौड़ती आवे एकदम पेला ने मारवा। तो समाजनी जे स्थिति छे, तो कृष्णे केवल सेवा करी तो एनी पासे ज्ञान पण छे, बुद्धिवर्धक, ज्ञानवर्धक, शरीरवर्धक जेनु दूध बतावे छे। गीतो एना माटे अमृत बतावे छे। एनी छास पण एटली अमृत समान छे, देवोने दुर्लभ छे। अने छास जुदी पाછી આપણે બધા બનાવીએ છીએ તો મઠ્ઠો જ કહેવાય, કારણ દહીં વલોડીને પાણી રેડીને એટલે મઠ્ઠો જ કહેવાય। પણ છાશ તો એ છે જ્યારે તમે માખણ કાઢો ને અને માખણનું જે પાણી નીકળે એ છાશ કહેવાય। એ દેવતાઓ પણ અમૃત લાગે છે। સુખદેવજી વર્ણન કર્યું, પરીક્ષિત દિલીપને આશીર્વાદ મળ્યો। દિલીપનો પુત્ર રઘુ થયો, રઘુનો પુત્ર ભગીરથ થયો, અને ભગીરથ દ્વારા ભાગીરથી ગંગા પ્રગટ થઈ। પિતૃનો ઉદ્ધાર કરવા માટે ભગીરથ ભગવાન શંકરે ગંગાને ધારણ કરી, જ્યાં જ્યાંથી વહેતી થઈ પતિત પાવન ગંગા બની। આ વંશમાં રઘુવંશ અને રઘુવંશમાં રાજા દશરથનો જન્મ થયો। રામ કથા સુંદર કરતારી, संशय बिह गयो डावनिहारी। जय हो श्री राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय अनंत राम भगवान, कथा कथा कीर्ति
गुण गाना। श्री राम जय पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। श्री राम जय जय राम। 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 ओ श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। ओ श्री राम जय जय राम। हरे प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। हरे प्रगट कृपाला दीना यह सुख मीरा यह सुख परम पुनीता। जय सुनीला अति प्रिय शीला यह सुख अनुपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सिर भूपा। यह चरित जगावई अति सुख पावई तेरा पर भव गोपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना यह सुख परमयनोपा। यह चरित जगावई हरि पद पावई तेरा परे भव गोपा। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। समय पर समय व्यतीत થવા લાગ્યો। રાજા દશરથના લગ્ન થયા। 3 પત્નીઓ દિવસો વ્યતીત થયા। એક વાર રાજા દશરથને जय हो जय हो। વશિષ્ઠની પાસે જઈને કીધું મહારાજ મને પુત્ર નથી। તુરંત પ્રયોગ આપી દીધો। શૃંગી ઋષિ વશિષ્ઠ બોલાવા પુત્ર કામ શુભ यज्ञ કરાવા। પ્રેમ સહિત આહુતિ સબ દેને। હા સુંદર દિવસો પસાર રહ્યા। અહીં પણ ગાય આવે છે। અહીં ગાયની સેવા નથી કરી પણ ગાયના દૂધમાંથી ખીર બનાવી અને એનો અગ્નિમાં આહુતિ આપી છે। એટલે ગાય શ્રીતા મધ્ય દિવસ અતિ શીતન દામા પાવન કાલ લોક વિશ્રામા। અને એ સમય કૌશલ્ય હૃદયમાં ચતુર્ભુજ રૂપે સ્વરૂપે પ્રગટ થતા। બોલીએ શ્રી રામચંદ્ર भगवान की जय। राम राम का बीज मंत्र ही राम है। कृष्ण का बीज मंत्र क्लीम है लेकिन राम का बीज मंत्र राम है। 3 अक्षर जिनमें समाया जाता है राम र अ म। अकार मकार उकार और इकार वो राम है। यानी ओम। ओम में 4 अक्षर है। राम में 3 अक्षर है। अकार मकार और इकार। र अ म राम। आराम में राम है। राम में राम है। सब जगह पे राम ही राम है। प्रेम में भी राम है, दुख में भी राम है, जन्म में भी राम है और मृत्यु में भी राम है। जिनके बिना कोई रह नहीं सकता वो राम है।
राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न બંને મહાપુરુષની લીલા की शुरुआत कहां से शुरू हुई? चाहे रामायण की शुरुआत हो या भागवत की शुरुआत हो, भगवान राम ने ताड़का को मारकर अपनी लीला के प्रारंभ किया और भगवान कृष्ण ने पुतना को मारकर अपने जीवन लीला का प्रारंभ किया। तो लोग तो ऐसे मन बुद्धि वाले ऐसे समझाएंगे ना भगवान ने औरत को मारा है, देखो भगवान ने औरत को मारा। आजकल चलता है झंझट, डोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़न के। ताड़न यानी क्या? लाल है तो 5 वर्षाणी, ताड़ित 10 वर्षाणी। वो भी सोच रहे 10 साल के बच्चे को मारने को नहीं बताया, ताड़ित अर्थ लालन बताया है। 5 साल के बच्चे को पूरा प्यार से रखो और 10 साल के बच्चे तक उसमें थोड़ा कंट्रोल रखो। अनर्थ का अनर्थ होता जाए और पर अपनी खिचड़ी पका रहे हैं और समाज को अज्ञानता में धकेल रहे हैं और लोग को उनके हाव में हाव करते हैं। भगवान ने बताया दोनों ने, यहां पूतना भी वासना है और ताड़का भी वासना है। जिनको महान बनना है वो वासना को कंट्रोल करेगा, तभी वो महान बनेगा। अपने रास्ते में जो अवरोध आता है, अवरोध को भगाएगा, वही महान बनेगा। तो ताड़का और पूतना वो वासना बताई गई, दोनों ने भगा दिया। आदर्श राम पारिवारिक जीवन की जो कथा है वो रामायण है। भाई भाई का प्यार कैसा होना चाहिए, पति पत्नी का प्यार कैसा होना चाहिए, पिता पुत्र का संबंध कैसा होना चाहिए, भक्त और भगवान का संबंध कैसा होना चाहिए, ये रामायण बताता है। जब भगवान राम ने सुग्रीव से पूछा और बताए मेरी पत्नी को मेरा भाई उठाकर ले गया है, तब राम बोले आज से तेरा दुख मेरे लिए मेरू समान है। मेरा दुख भी आपका जैसा ही है, मैं भी दुखी हूं, आप भी दुखी, लेकिन अभी तक मुझे मेरा दुख ही दिखता था। आज तेरा दुख देखकर मेरा दुख गौण हो गया। मैं पहले आपकी लोग पत्नी को लाऊंगा, बाद में मेरी पत्नी को खोजूंगा। ये मैत्री भाव का पवित्र झरना मुझ हैया में रहा करे। शुभ थाव सकल थाव ये विश्व की भावना रहा करे। ये कृष्ण का मित्रता देखो। कौन कहता है सुदामा कंगाला? लोग तो ऐसे बोल देते हैं और कथाओं में भी बोला है, क्योंकि अपने पर ही बोलना चाहिए, दूसरे पर बोलेंगे तो लोग झगड़ा करेंगे। इसलिए पंडितों ने एक ब्राह्मण बता दिया भाई ब्राह्मण को ऐसा, लेकिन ब्राह्मण दरिद्र नहीं है। ब्राह्मण के पास समृद्धि है, ये शास्त्र की समृद्धि है। कितना बड़ा धंधा है उनके पास। देखो 1 रुपये का इन्वेस्टमेंट नहीं है ब्राह्मणों के पास। खाली झोली लेकर जाना और भर कर आना, वो चमत्कार नहीं तो क्या है? पंडित खाली झोली लेकर जाते और भर कर चला आता है। इनके पास 1 रुपया नहीं है, लेकिन जहां भी कथा करने पूजन करने बैठ जाए वहां 1000 2000 10,000 लाख रुपये इकट्ठा कर लेता है। कौन कहता है कंगाल है? वो तो एक स्वभाव हो गया, वो तो एक कहने वाला हो गया, एक बताने वाला हो गया, लेकिन कोई ब्राह्मण कंगाल नहीं। मैं नहीं मानता। नहीं करना और फिर कुछ कायरता की बता के बैठ जाए तो बात अलग है। ब्राह्मण के पास जो संपत्ति है वो शास्त्र संपत्ति है, और शास्त्र से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। शस्त्र से जो नहीं हो सकता वो शास्त्र से हो सकता है। स्वमान से जीना चाहिए, लोगों को प्यार से जीना चाहिए, ये ब्राह्मण का कर्तव्य है। सबके साथ प्यार से। और जजमान जिसका होता है वो तो धनी के पास भी ब्राह्मण जाता है तो भी आराम से जाता है, गरीब के वहां भी अपना यजमान है वो भी वहां भी जाता है, झोपड़ी में भी बुलाए तो वो वहां चला जाता है। वो कभी ऐसा नहीं कहते कि मैं धनी के वहां जाऊंगा, जो बुलाए उनके वहां चले जाता है। और सबके इसीलिए सारे संसार को ब्राह्मण के प्रति लगाव है। चाहे विद्वान हो या ना हो, लेकिन ब्राह्मण है तो सबको इसमें प्यार होता है। आदर्श भगवान कृष्ण का जो मित्र बनाया, आदर्श पत्नी, आदर्श पति, आदर्श भगवान, सबरी के वहां गए, दौड़ कर चले गए।
कई लोगों ने बुलाया, लेकिन राम किसी के आश्रम पे नहीं गए, सबरी के आश्रम पे चले गए। आदर्श भगवान किसको कहा जाता है? आज तो हम क्या कहे, हम पहले के समय में तो लोग गांव में आते थे तो पूछते थे भैया वैष्णव कौन है। आज लोग कोई पूछते नहीं, वैष्णव है या नहीं कोई पूछते ही नहीं। पूछते तो क्या, धनी कौन है, बड़ा पैसा वाला कौन है, बस उसको खरीद लो, उसके पास चले जाओ तो बहुत लोग आ जाएंगे, उसको आगे करो। इतना डिफरेंस आ गया। अब पैसे के पीछे सब पड़ गए, कोई वैष्णव के पीछे कोई नहीं। तो वैष्णव को आनंद आ गया, चलो कोई बात नहीं, अच्छा। वेदांत में एक सुंदर दृष्टांत आवे कि समड़ी ખોરાક લઈને ઉડતી હોય। સમડીને એવું છે કે હું શાંતિથી બેસીને ખાઈશ, પણ એને ખાવાનું મળે જ નહીં। જેટલે કાગડા ને સમડી જોઈએ બધા એને ચાંચો માર કરે, અને પેલી એટલી થાકી જાય એ પગ ઢીલા પડી જાય ને ખાવાનું પડી જાય, એટલે જે પકડે એની પાછળ દોડે, સમડી એકલી જઈને શાંતિથી બેસે। आदर्श रामलीला संक्षिप्त में अपने एक श्लोक में पूरी करिए। आदो राम तपोवनादिगमनम हत्वन मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम वाली निग्रहरणम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभहरणम एतद्धि रामायणम प्रथम तिलक शिष्ट मुनिकीना श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान राम ने वशिष्ठ मध्ये तिलक करता राजा राम तिलक राजगादी मध्ये प्रारंभ थयो। तो हृदय में विराजमान करी समुद्र मध्य विराजता भगवान द्वारिकाधीश ने कथा श्रवण करता पहला श्री रामचंद्र भगवान की जय। भगवान कृष्ण ने पधारना है એટલે ભગવાન શોધવા લાગ્યા, ભાઈ મારે કયા ઘરમાં રહેવા જવું? બોલાવે છે ખરા, પણ મારે ફેસિલિટી જોવી પડશે। આપણે જોઈએ ને ભાઈ, તમે બોલાવો પણ કેવી ફેસિલિટી આપો છો? एम कृष्णए विचार कर्यो भाई मारे जवुं कोना घरमां? बे घर छे, यदुकुल अने पुरुकुल। तो यदुकुल में झांकी करी नजर करी तो यदु राजाए शुं काम कर्युं छे? ययाति जेनो पिता छे अने पिताए पोताना दीकराओने भेगा करीने कीधुं मने जुवानी आपो अने मारुं घर पण तमे लई लो। आ ट्रांसप्लांट ए जमानामां थतो हतो, અત્યારે થઈ જાય સારું, થાય છે, પણ એની દવા ડોક્ટરો પાસે નથી, એની દવા આ સત્સંગોમાં છે અને તમારા બધાના અનુભવ પણ છે। માનો કે તમે મંદિર જતા નથી રોજ, પણ કોક દિવસ ઈચ્છા થઈ કે લાય આજે ધીરે ધીરે મંદિર જવું। लाकड़ीना टेके केड़े नमी गेला स्वन पराणे पराणे चलता चलता मंदिर में गया अने धीरे धीरे तमारा कान में दवाओनी असर थवा लगी। ए नाम घोष जय जयकार अने ए दवानी असर थता थता तमारी अंदर एक नवी ऊर्जा आवा लगी। ऊर्जा आवा लगी એટલે लाकड़ी फेंकाई गई, घड़पण भागी गयो, बीमारी जती रही, हाप उड़ी गयो अने एकदम टोळानी अंदर दीने नंद गहरा नंद भयो। जय कन्हैया की नंद गहरा नंद भयो। जय कन्हैया। 80 वर्षना पण जुवान ने शर्माओ एवा ठेकड़ा मारी मारीने नाचता था अने ए दर्शन करवामां आजे तमारी वहू पण आवी। हजू वार छे, आपणे ए कन्याने लाववानी वार छे। वहुए दर्शन भगवान न कर्या पण तमारा कर लीधा अने ज्यां उत्सव पूरो थयो अने बधुं भूतड़ा भागेला केवा वर्गी पड्या।
श्वास चढ़ो लाकड़ी के चश्मा कही गया એટલે પાછી વેશભૂષા કરીને ધીમે ધીમે લાકડી લઈને ફરી પાછા પૂતળા વર્ગી જાય અને ઘેર જઈને વહુને એમ કહ્યું બહુ પાણીનો ગ્લાસ હાલ તો હાલે ખરે આરામ બરાબર હાલે બા નાટક બંધ કરતો બધા અરે બેટા નાટક કરો હા નાટક જ ને શું કર્યું નાટક કયું વિટામિન કઈ દવા ખાધેલી મંદિરમાં ઠેકડા મારતા હતા કુદાકુદ કરતા હતા બૂમો કરતા હતા અરે બેટા એ તો ભક્તિમાં એવી રંગી ગઈ ખબર જ ના પડી બસ યુવાન બનાવી શકે એ ભક્તિ તો યદુએ કીધું પિતાજી ભક્તિ કરીએ તો યુવાની આપો ભોગ ભોગવવા તો ના આપો તો પુત્રને કાઢી મૂક્યો અને યદુએ સાથ આપ્યો તો ભગવાને વિચાર કર્યો મારે એના ઘરમાં જવાનું જેને ધર્મને સાથ આપ્યો હોય એના ઘરમાં જવાનું ધર્મને ઘેર નહીં તો યદુ કુળમાં ભગવાન પસંદ કર્યું હું આ ઘરમાં આવું દસમ સ્કંદ પહેલો જ પ્રશ્ન પરીક્ષિતનો છે કથિતો વંશ વિસ્તારો ભવતામ સોમ સૂર્ય रागनाम चौभे वंशाराम चरितम परमाद्भुतम। अब और कोई कथा मुझे नहीं सुननी। सोम सूर्य जैसे राम की वामन की ऐसा कुछ नहीं कहा। अब केवल मुझे चंद्रवंश में प्रकट हुए भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनाई है। सुखदेव जी ने सोचा ये जिज्ञासा है कि आर्टिफिशियल है। हम भी लोगों कहते हाँ बस अच्छा करो करो, फिर बगासा